Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12th lecture series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums for class 12, today we'll be covering the second part of textbook unsolved sums of chapter 7 wave optics. We have already covered the MCQs and part 1 of sum solving of this chapter. Please check it out by clicking on the top right icon if not done yet. So let us start with the first sum. The intensity of light coming out from one of the slits in Young's experiment is twice the intensity of the light coming out from the other. What will be the approximate ratio of the intensities of the bright and dark fringes in the resulting interference pattern? So what we have is I1 is equal to twice I2 और हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, यानी वी वांट टू फाइंड आउट I max upon I min का रेशियो. So this can be written as A1 plus A2 upon A1 minus A2 the whole square. इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमने MCQs में भी किया था. We know that intensity is directly proportional to amplitude का square. So यहाँ पे हम लोग amplitude की जगह पे इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं. We can write it as root of I1 plus root of I2 divided by root of I1 minus root of I2. Now we will put this relation in this equation. So I1 जहाँ पे भी है वहाँ पे हम लोग लिख देंगे root of 2I2. Now न्यूमरेटर से भी root I2 और डिनोमिनेटर से भी root I2 कॉमन ले लेंगे. Then we are left with this root of 2 plus 1 upon root of 2 minus 1 the whole square. मैंने ये कई बार बोला है कि √2 अगर आपको याद रहेगा तो काफ़ी बार काम आसान हो जाएगा. So 1.414 plus 1 divided by 1.414 minus 1 whole raised to 2. So ये आ गया 2.414 divided by 0.414 raised to 2. Now when you solve this by using log, ये आपको आ जाएगा approximately 34. या आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एक मेथड है. सो यू कैन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2 plus 1 सो दैट ये डिनोमिनेटर चला जाएगा और फिर न्यूमरेटर में आप स्क्वायर लेके सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मेथड से आंसर आ जाएगा आपको. लेट अस गो अहेड विद द नेक्स्ट सम. द पैरेलल बीम ऑफ अ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 nanometer passes through a slit of width 0.4 mm. The intensity pattern of the transmitted light is seen on a screen which is 40 cm away. What is the distance between two first order minima? तो यहाँ पे wavelength is given as 546 nanometer. नैनो मतलब 10 raised to minus 9 आ जाएगा. Then we have slit का width which is 0.4 mm. Then we have screen का distance which is 40 cm या फिर आप इसको 0.4 मीटर ले सकते हो. Now what they have asked is कि अगर ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है. एंड नाउ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज नथिंग बट विड्थ ऑफ दिस सेंट्रल ब्राइट बैंड. तो ये सेंट्रल ब्राइट बैंड का विड्थ का फॉर्मूला है 2 लैम्डा डी बाय ए. इसके ऊपर हमने एक सम ऑलरेडी किया था पिछले पार्ट में. दिस इज इक्वल टू 2 इंटू वेवलेंथ इज 546 इंटू 10 raised to minus 9. D की वैल्यू है 0.4 डिवाइडेड बाय A इज 0.4 mm. उसको आप 10 raised to minus 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर हो जाएगा. 0.4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. सो 546 इंटू 2 विल गिव अस 1092 इंटू ये 10 raised to minus 9 ऊपर है, 10 raised to minus 3 ऊपर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा. सो विल बी लेफ्ट विद 10 raised to minus 6 and this can be written as 1.092 into 10 raised to minus 3 मीटर या अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसको 1.1 मिलीमीटर लिख सकते हैं. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं. What must be the ratio of slit width to the wavelength for a single slit to have the first diffraction minimum at 45 degree? यानी यहाँ पे हमें थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री विच इज पाई बाय 4 एंड स्लिट विड्थ टू वेवलेंथ ये वाला रेशियो हमें फाइंड करना है. नाउ वी ऑल नो दैट कि थीटा इज गिवन बाय लैम्डा अपॉन ए. सो इन सिंपल वर्ड्स वी आर सपोज टू फाइंड आउट ए बाय लैम्डा मतलब 1 बाय थीटा एंड थीटा अपने पास है पाई बाय 4. सो 1 बाय थीटा मीन्स हो जाएगा 4 बाय पाई यानी 4 बाय 3.142. अगेन आप लॉग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट
1.27. Let us check out the next sum. Monochromatic electromagnetic radiation from a distant source passes through a slit. The diffraction pattern is observed on a screen which is 2.5 meter away from the slit. यानी ये capital D का value दिया हुआ. Next, if the width of the central maximum is 6 mm, यानी ये WC का value दिया हुआ है. Width of the central maximum 6 mm मतलब 6 into 10 raised to minus 3 मीटर हो जाएगा. What is the slit width A? ये हमें फाइंड करना है ये सारे केसेस में. सेंट्रल बैंड का विड्थ का फॉर्मूला हमने देखा है कि इट इज 2 लैम्डा D by A एंड वी आर सपोज टू फाइंड A, सो फॉर्मूला हो जाएगा 2 लैम्डा D by width. ठीक है, अब इसे तीनों केस के लिए सॉल्व कर लेते. पहला केस में वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 500 नैनोमीटर या 500 into 10 raised to minus 9 मीटर. सो लेट अस फाइंड आउट A का वैल्यू इन दिस केस. सो ये हो जाएगा 2 into 500 into 10 raised to minus 9 into D का वैल्यू इज 2.5 डिवाइडेड बाय width is given as 6 into 10 raised to minus 3. 2.5 into 2 हो जाएगा 5 और ये 5 5 are 25. तो 25 by 6 into 10 raised to कितना बचेगा -4 एंड ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4.167 into 10 raised to -4 मीटर, या आप इसको 0.4167 मिलीमीटर भी लिख सकते हो. नेक्स्ट, व्हेन वेवलेंथ इज 50 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब हो जाएगा 10 raised to -6, सो A का वैल्यू हो जाएगा 2 into 50 into 10 raised to -6 into 2.5 डिवाइडेड बाय 6 into 10 raised to -3. इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 25 by 6 into 10 raised to -2. ये हमें आ जाएगा 4.167 into 10 raised to -2, या फिर इसको हम लोग 41.67 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं. लास्टली, फॉर वेवलेंथ इक्वल टू 0.5 नैनोमीटर, मतलब 0.5 into 10 raised to -9, सो A का वैल्यू हो गया 2 into 0.5 into 10 raised to -9 into 2.5 डिवाइडेड बाय 6 into 10 raised to -3. अब ये 0.5 मतलब हाफ होता है तो ये कैंसिल हो जाएंगे. बचा क्या 25/6 into 10 raised to -7. So this will be 4.167 into 10 raised to -7, या आप इसको 4.167 into 10 raised to -4 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं, है ना. 10 raised to -3 क्या हो जाएगा मिली. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं. अ स्टार इज एमिटिंग लाइट एट द वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम. Determine the limit of resolution of the telescope having an objective of diameter 200 inch. So wavelength यहाँ पे हो गया 5000 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम लोग 5000 into 10 raised to -10 मीटर भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट इट एज 5 into 10 raised to -7 मीटर. कैपिटल D यहाँ पे 200 इंच दिया हुआ है, बट कैलकुलेशन हम मीटर्स में करते. सो 200 into 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, एंड इंटू 10 raised to -2 कर देंगे तो मीटर हो जाएगा. सो वी गेट दिस एज 5.08 मीटर. नाउ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन थीटा इज गिवन एज 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल D. सो दिस इज 1.22, लैम्डा इज 5 into 10 raised to -7 डिवाइडेड बाय 5.08. व्हेन यू सॉल्व दिस बाय यूजिंग लॉग, ये आपको आ जाएगा 1.2 into 10 raised to -7 रेडियन. I hope you all understood this. If you have any query in how to use log, please click on the top right eye icon and check out the video on how to use logbook for solving sums. ये आपको link description में भी मिल जाएगा. Let us go ahead. The distance between two consecutive bright fringes in a biprism experiment using light of wavelength 6000 angstrom is 0.32 mm. By how much will the distance change if the light of wavelength 4800 angstrom is used? लैम्डा 1 हमें दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम 6 into 10 raised to -7 मीटर लिख सकते हैं. नाउ इन दिस केस वी हैड द फ्रिंज विड्थ या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड्स
to be equal to 0.32 mm. सेकेंड वाले केस में इन लोग ने क्या किया, वेवलेंथ चेंज करके 4.8 into 10⁻⁻⁷ मीटर ले लिया. देन इन दैट केस व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, ये हमें फाइंड करना है. नाउ फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D by स्मॉल d. नाउ कैपिटल D स्मॉल d सेम है दोनों केस में, सो व्हाट वी कैन राइट इज y is directly proportional to lambda. So we can have y2 upon y1, this is equal to lambda 2 upon lambda 1. So we can find y2, this will be equal to lambda 2 upon lambda 1 into ये y1 इस बाजू ले लेंगे, न्यूमरेटर में आ जाएगा. Let us put all the values. ये हो जाएगा 6 into 10⁻⁻⁷ divided by 4.8 into 10⁻⁻⁷ into 0.32 mm है, तो इसको 10⁻⁻³ कर देते. ये 10⁻⁻⁷ तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एंड ये आप डिवाइड करोगे तो 12 4 48 एंड 12 5 60, तो पॉइंट है उसलिए ये हो जाएगा 5/4 आ जाएगा. बाकी व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट आंसर एज 0.256 into 10⁻⁻³ मीटर. सो दिस इज द न्यू फ्रिंज विड्थ. हमें क्या निकालना है, हमें चेंज फाइंड करना है. तो हम लोग चेंज के लिए क्या करेंगे, y1 minus y2 कर लेते हैं. सो y1 इज 0.32 into 10⁻⁻3, y2 हमें मिला 0.256 into 10⁻⁻3. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा 0.064 into 10⁻⁻3 मीटर, और यू कैन राइट इट एज 0.064 mm. So this is the change in the fringe width. I hope you all understood this. Thank you for your time. If you're finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button, and don't forget to share it with your friends and classmates. Based on your feedbacks and suggestions, we'll be making videos under our 5 minutes lecture series for class 12. So please feel free to let us know the topics you want us to cover. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.